Hello class, good morning to all, and today we will talk about the next topic of our chapter haloalkanes and haloarenes, that being the types of substitution reaction. Clear? The types of substitution reaction. Here you can say that the types of nucleophilic substitution reaction. So here you have nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. Clear? So in this section we'll talk about the types of these reaction. Clear? That means mainly you have the two type of reaction. The first is called nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution, biomolecular, and second is that nucleophilic substitution unimolecular reaction. Unimolecular reaction. So see that here the first is nucleophilic substitution biomolecular. That means this is known as SN2 reaction. This is known as SN2 reaction, and here the nucleophilic substitution unimolecular, that means it's called SN1 reaction. Clear? So today we'll discuss these two reactions, that about two reaction SN2 and SN1. Okay, and see that what happened in these two reaction, what is the difference in between two reaction, and what is the relative reactivity of the alkyl halide towards these SN2 reaction or the SN1 reaction. Clear? So see that the first topic you have the nucleophilic substitution biomolecular. Clear? So start here. Clear? And note down the topics, the question from the board to in your copy. Clear? And make your own notes. Clear? So see that you have SN2 reaction. So first of all, I am deciding a simple equation. Take a simple nucleophilic equation. That means suppose you have a reaction in this manner, like alkyl bromide CS3Br is reacting with OH negative to gives out CS3OH plus Br negative is there. Clear? So there is a simple nucleophilic substitution reaction where the OH negative, that means nucleophile, is replacing Br. That means substituting Br from alkyl bromide and forming CS3OH, that means alcohol, with a leaving group called Br negative. Clear? So this is called the leaving group. Leaving group. Clear? And you know very well this OH negative is sometimes called, it's called incoming group. It's called incoming group. It's clear? That means alkyl bromide plus OH negative, it's a nucleophile. It's a nucleophile. Nucleophile. Clear? And what is a nucleophile? Nucleophiles are those chemical species which those are electron rich. Those have the negative charges, those are the neutral, having some lone pair. Yeah. So this is the one type of nucleophile, that means the OH negative having negative charge species. Clear? So this is a simple reaction CS3OH plus Br negative. It is clear? So see that what happened in this reaction. In this reaction is simply we will calculate the firstly rate of reaction. ठीक है, हमें क्या निकालना सबसे पहले rate of reaction निकालेंगे, then we will decide that this reaction is going under SN1 reaction or SN2 reaction. ठीक है? So see that हम बात कर रहे हैं rate निकाल रहे हैं, RATA rate. Clear? So first of all understand what is the rate of any reaction. Clear? Rate, that means you can say that the moderate speed of a reaction. Clear? That means when the reaction will be completed. ठीक है? या you can say that कि जो rate होगा वो किन चीजों पर डिपेंड करता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि किन बातों पर डिपेंड करता है रेट. अगर आपको रेट निकालना है तो रेट किन बातों पर डिपेंड करेगा. ठीक है, रेट होता क्या है? देखिए रेट का मतलब होता है सिंपली यू हैव अ सिंपल रिएक्शन. यू हैव अ सिंपल रिएक्शन, दैट मीन द रिएक्टेंट इज गोइंग अंडर केमिकल रिएक्शन एंड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट पी. ठीक है, सो अगर मुझे कोई बोले कि कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, रेट में क्या होता है बच्चे? दीज आर टू थिंग्स. द फर्स्ट इज द रिएक्टेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. Clear? In this, you can say that the rate is depend on both the substances, that mean reactant as well as product.
If the rate is depend on the reactant, then the concentration of reactant will be decreases as per unit time. ठीक है. Suppose here is one reactant and here is one product. ठीक है. You are forming a reactant to product. The chemical reaction is going on. ठीक है. हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो R होगा वो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा व्हेन द होल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. ठीक है. सपोज यू कैन सी दैट अगर यहां पर T इक्वल टू जीरो होगा, T इक्वल टू जीरो होगा तो जो R आपके पास है ये आपको R ही मिलेगा. ठीक है. या कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, विल टॉक अबाउट लेटर ऑन दिस टॉपिक. ठीक है. बट समझ लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. अगर T इक्वल टू जीरो है दैट मीन R इज रिमेन कंप्लीट हेयर. अभी तक आप केमिकल रिएक्शन में गए नहीं है तो प्रोडक्ट का जनरेशन हुआ भी नहीं है. ठीक है. आफ्टर सम टाइम व्हेन द टाइम विल इंक्रीजेस दैट मीन द रिएक्टेंट विल बी डिक्रीजेस. टाइम इंक्रीजेस, रिएक्टेंट डिक्रीजेस एज वेल एज प्रोडक्ट विल इंक्रीजेस. अभी यहां पर P कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. वेयर व्हेन द टाइम इक्वल टू जीरो, टाइम इक्वल टू जीरो दैट मीन रिएक्टेंट इज द रिमेन सेम, प्रोडक्ट विल बी जीरो. कोई प्रोडक्ट बनाई नहीं क्योंकि रिएक्शन आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ है. ठीक है. तो व्हेन द टाइम विल इंक्रीजेस दैट मीन rate, yeah, you consider reactant concentration is decreases and the product concentration will be increases. ठीक है. तो you can define your rate that mean decreasement in reactant as per unit time. ठीक है. and increasement in product or increasement in product per unit time. So this is called the rate of any reaction. Okay. So see that here we are calculating the rate. So rate here is directly proportional to the CH3Br. CH3Br, that means the concentration of CH3Br and the concentration of OH negative. ठीक है. And you know that very well what is the significance of these bracket. ठीक है. Square bracket. This is represented you about the concentration of any substances. Concentration that means the amount of substances. ठीक है. आप अमाउंट की बात कर रहे हैं कि इतना अमाउंट है, उसे concentration बोल दिया आपने. ठीक है. चलिए. So here you are seeing that the R is directly proportional to the concentration of reactant. ठीक है. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर आप डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है. जो आपका R होगा, जो आपका रेट होगा, वो डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर. क्लियर. सो सी दैट हियर वी यूज हियर ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट मीन K CH3Br and OH negative. ठीक है. This is your rate. This is your rate. And K is called the proportionality constant, and here is also known that the rate constant. Clear? So you are saying that your rate is depending on the two reactant species. Two reactant species. That means this known nucleophilic substitution via molecular. Clear? Via का means क्या हो गया, दो. Via means क्या होता है, दो. That means your rate is determining by this two. ठीक है. यानी जो रेट होगा वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके दो रिएक्टेंट स्पीसीज पे. दैट मीन द अल्काइल ब्रोमाइड एज वेल एज दिस OH नेगेटिव, दोनों पर डिपेंड कर रहा है. दैट्स व्हाई इट्स नोन द रेट इज इक्वल टू 2. दैट मीन इट्स कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन. क्लियर. इतनी बात समझ गए. तो ये हो गया आपके पास हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. एंड दैट्स ड्यू टू दिस रेट कितना है आपका, 2 आ गया. तो आपने बोला दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर दैट मीन SN2 रिएक्शन. ठीक है. नाउ नोट इंपॉर्टेंट थिंग्स देयर. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मीन दिस SN2 अगर हम जब भी बात करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, वी आर टॉकिंग हियर द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, मैकेनिज्म of SN2 reaction. SN2 reaction, that means this reaction is only undergo single step reaction. Single step reaction. ठीक है. आपका जो SN2 का मैकेनिज्म होगा, it always follow single step reaction through transition state. Through ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है. जब भी आप SN2 की बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलने वाला है. ठीक है. ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, वो स्टेट होगा जहां पर आप रेट को डिटरमाइन करेंगे, जहां पर आप क्या करेंगे, रेट को डिटरमाइन करेंगे. ठीक है. ट्रांजिशन स्टेट इज अ स्टेट वेयर द इनकमिंग ग्रुप इज कमिंग एंड द लिविंग ग्रुप इज गोइंग टू लीव. इनकमिंग ग्रुप इज कमिंग एंड द लिविंग ग्रुप इज गोइंग टू लीव. ठीक है. वो आपके पास होगा TS, दैट मीन द ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है.
एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट इज ऑल्सो डिटरमाइन योर रेट, ठीक है, कैसा रेट है, कितना रेट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा आपका दिस ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है. काइंडली नोट दिस पॉइंट. नाउ this thing is clear. Now see that, चलिए I'm going to remove this portion here, ठीक है, या you can say see here. अगर आप बात करते हैं mechanism of this reaction, mechanism is clear, that means the single step reaction होगा, through the transition state होगा, ठीक है. Now see that here is alkyl bromide, you are seeing that this is alkyl bromide, you are talking about the here mechanism, that means here you have the CH3Br, ठीक है. CH3Br ऑब्वियसली यू आर सेइंग दैट इट लीव फ्रॉम दिस साइड, ठीक है. अगर आप CH3Br को रखा प्लेन ऑफ पेपर तो आप देखेंगे CH3Br का जो बॉन्ड होगा इन बिटवीन द C एंड Br, इट विल क्लीव फ्रॉम दिस साइड, it will cleave from this side. So always remember that in the SN2 reaction, in this way where the leaving group is leave, the incoming group is attacked from the back side, ठीक है. यानी कि दिस इज द फ्रंट साइड, दिस इज द बैक साइड ऑफ कार्बन, ठीक है. तो हमेशा जो इनकमिंग ग्रुप होगा बच्चे वो यहां से अप्रोच करेगा, ठीक है. दैट मीन इन SN2 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल इज अप्रोच फ्रॉम बैक साइड, ठीक है. हमेशा पीछे से आके अटैक कर जाएगा, ठीक है. बाद में बात करेंगे हम लोग इन द अंडर द सेक्शन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री किसकी क्या होती है, वहां बात करेंगे. बट रिमेंबर दैट कि जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो हमेशा बैक साइड अप्रोच करेगा, वेयर द लीविंग ग्रुप इज गोइंग टू लीव. क्लियर. सो हियर इज CH3Br एंड हियर यू हैव प्लस OH negative, clear. So you are saying that leaving group is leave from this side, so incoming group is come from this side, that will be the angle of 180 degree, ठीक है. So here you can see that here this is attack to this carbon C, so you are seeing that here is C, here is OH, ठीक है. OH that means is incoming, that means will show here by the dot, ठीक है. Here is CH3. If you want to represent this in the Wedge dash line, then you can free to represent this CH3Br in the Wedge dash line, otherwise it's okay. So you are seeing that here is I'm trying to, ठीक है, this is the 1H, ठीक है, and we all know that the 1H for the observer side and the 1H is from beyond of the observer, ठीक है, and here is one Br. So you are saying that there is a Br. Br is also showing by dot line, that means Br is going to leave and OH is attached to, OH is approaching to this carbon. So which is this thing is known the transition state called the TS, okay. This is called the transition state, that means TS. And remember that only this transition state you can able to calculate rate of reaction, ठीक है. बिकॉज ये सिंगल स्टेप रिएक्शन आपके पास है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है. सिंगल स्टेप में जो फर्स्ट TS होता है ये बहुत स्लो बनता है, ठीक है. इसका जो फॉर्मिंग का जो तरीका होता है वो बहुत धीमे बनता है. बट जैसे ही आपका TS बन गया, जैसे आपका ट्रांजिशन स्टेट बन गया, तो आफ्टर दैट ये जो Br नेगेटिव है ये आपका रैपिडली बाहर निकलता है, एंड रैपिडली OH नेगेटिव क्या होता है, अटैक कर जाता है या अटैच कर जाता है टू दिस कार्बन एटम, ठीक है. दैट मीन जब भी आप बात कर रहे होंगे टू स्टेप रिएक्शन का, तो सेकंड स्टेप इज ऑलवेज अ फास्टर रिएक्शन एज कंपेयर टू फास्टर रिएक्शन या फर्स्ट स्टेप. बट हियर इज ओनली वन स्टेप रिएक्शन. सो जो TS बनेगा वो बहुत धीमे बनता है. आफ्टर फॉर्मिंग TS इट विल गिव यू डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट विल सी here is OH and here you are seeing that 1H, ठीक है, and 1H here is here, ठीक है. तो this is your product called alcohol. So it is clear. But see that here is a word transition state. What is the significance, what is the importance of this TS? देखो TS में दो बातें हो रही हैं. One is that OH is coming to approach with the C and Br is going to leave, ठीक है. अब OH यहाँ पे देखो इनकमिंग जो बॉन्ड होगा इट ऑल्सो फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली, एंड जो Br नेगेटिव क्लीविंग बॉन्ड होगा इट ऑल्सो क्लीविंग साइमल्टेनियसली. दैट मीन हियर इज द टू वर्क इज गोइंग एट द सेम टाइम. दैट मीन OH इज अप्रोचिंग एंड Br इज लीविंग द ग्रुप, लीविंग द कंपाउंड, ठीक है. दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो यही डिसाइड करेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी बात आप यहां पर कर रहे थे, ठीक है. हियर वी आर सीइंग दैट द Br नेगेटिव इज gone outside of the reaction,
ठीक है, तो ये होगा आपके पास द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन. दैट मीन that the rate is the 2, that means depending on the two reactant species CH3Br as well as OH negative. ठीक है, second thing is that it's a single step reaction. ठीक है, this is a key point. This is a single step reaction, and in the single step reaction the incoming molecule is approach alkyl halide from back side. ठीक है, हमेशा अप्रोच कहां से होगी, बैक साइड से अप्रोच होगा. बैक साइड अप्रोच मीन्स इट्स फॉर्मिंग द 180 डिग्री विद दिस कार्बन एटम. ठीक है, इनके बीच जो एंगल बनने वाला है वो कैसा बनेगा, 180 डिग्री बनेगा. इनके बीच में कैसा एंगल आपके पास है, 180 डिग्री कार्बन. देखिए 180 डिग्री इज कार्बन, 180 डिग्री एंगल इज हियर. ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, बैक साइड अप्रोच होगा. अगर आपका Br नेगेटिव यहां लगा है, इट्स रिमूविंग फ्रॉम दिस साइड, सो इनकमिंग ग्रुप ऑब्वियसली अटैकिंग फ्रॉम दिस साइड. सो दिस कॉल द बैक साइड अप्रोच. इसे क्या बोलेंगे आप, बैक साइड अप्रोच. बैक साइड अप्रोचेस. ठीक है, हमेशा बात करेंगे बैक साइड अप्रोचेस की. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन. नाउ सी दैट, नो दिस. ठीक है, क्लियर हो गया. चलिए नाउ सी, होता क्या है SN2 रिएक्शन के अंदर मेनली. ठीक है, जब भी विल टॉक अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द SN2 रिएक्शन. ठीक है, यू आर सीइंग दैट द SN2 रिएक्शन इज ओनली द सिंगल स्टेप रिएक्शन. ठीक है, ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन. सिंगल स्टेप रिएक्शन दैट मीन आप क्या कर रहे हैं भैया, सिंपली आपको अटैक करना है. आपको न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल लेके आपने एल्काइल ग्रुप पे, सॉरी एल्काइल हैलाइड पे जोड़ दिया. ठीक है, वहां से जो हैलाइड आया था वो बाहर निकाल दिया. सिंपल आपको मिला एक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, अब देखिए जब भी आप बात करते हैं द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, पहले बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन. ठीक है, अब तो बिल्कुल क्लियर है ना बातें कि कैसे पहचानेंगे SN2 रिएक्शन को. भैया सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा. द फर्स्ट थिंग इज दैट द सिंगल स्टेप रिएक्शन. सेकंड थिंग इज दैट द रेट इज डिपेंड ऑन बोथ द रिएक्टेंट स्पीसीज. ठीक है, बात समझ गए, दोनों पर डिपेंड करेगा. तो उसे आप बोलेंगे SN2 रिएक्शन, दैट मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन. बाद में बात करेंगे SN1 का. ठीक है, अभी बिल्कुल माइंड सेट करके चलना कि कहां पे क्या होने वाला है. एवरीथिंग विल बी क्लियर. ठीक है, अगर नहीं करेंगे दैट मीन देयर आफ्टर सम टाइम देयर सम इज पॉजिटिव स्टेट इज कम्स आउट. क्लियर. सो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन. सो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन इज लाइक दिस, दैट मीन द CH3X कर दो, CH3X इज हायर एज कंपेयर टू 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, then 3rd degree alkyl halide. This is the relative stability of the SN2 reaction. ठीक है, यहां देखिए जब मिथाइल आपके पास है, ब्रोमाइड या मिथाइल जो भी आपके पास होगा, वो आपको क्या देने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत रैपिड रिएक्शन देने वाला है. ठीक है, एक बार देखते हैं हम लोग कि क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है. ये स्ट्रक्चर बना आपके पास H H H और here is 1X. ठीक है, अगर मैं देखूं आपके पास 2 डिग्री केसेस में क्या होगा, 1 को छोड़ता हूं, 2 डिग्री बात करता हूं. पहले देखिए 2 डिग्री ये होगा, या ऐसा कर लेते हैं हम लोग, CH3 करते हैं इसको. ठीक है, इट्स मिथाइल द 1 डिग्री. ठीक है, ये सिंपल मिथाइल आपके पास है. सिंपल मिथाइल दैट मीन यू हैव द इन दिस मैनर H H H H. ठीक है, ऐसा बनेगा मिथाइल. सेकंड इज 1 डिग्री कार्बन. सेकंड इज 2 डिग्री कार्बन लाइक दिस. यू हैव द X C H और H. ठीक है, या सिंपली समझ लेते हैं, पहले 1 डिग्री और 2 डिग्री में समझ लीजिए. ठीक है, क्या बनने वाला कंपाउंड. देखिए यहां पर बात करें, हियर इज अ मिथाइल ग्रुप, दैट मीन द CH3, एंड हियर इज CX अंडर 3H. ठीक है, सो यू आर सेइंग दैट here is the one side is totally blank. One side is totally blank, that means the incoming group is comes very easily to this methyl group. It is clear. After that you are saying that there is 3 hydrogen. ठीक है, and then जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, कुछ बल्कि ग्रुप मिलने वाला है. ठीक है, लाइक दैट इन दिस बल्कि ग्रुप आप क्या बोल सकते हैं, यू हैव दिस वन लाइक CH3 X
H and H. दिस द सेकंड डिग्री. ठीक है, ये कैसा आपके पास है, सेकंड डिग्री है. तो यहां पर आपने क्या बोला कि जैसी आपका कोई इनकमिंग ग्रुप आएगा, ठीक है, दिस द एक्स, यानी कि Br नेगेटिव, I नेगेटिव, वट यू हैव, जैसे कोई इनकमिंग ग्रुप आएगा तो इच हैव ए बल्की ग्रुप. ठीक है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, देयर इज ए बल्की ग्रुप. ठीक है, बल्की ग्रुप होगा. अगर मैं आपसे कहूं दिस टाइप ऑफ कंपाउंड CH3 एंड CH3, ठीक है, एक ये मिला आपको और एक ये कंपाउंड आपके पास है, एंड हियर इज सम एक्स. ठीक है, सो देखो एक्स को हमेशा सब्स्टिट्यूट करना है बाय द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, आपके पास 3 बल्की ग्रुप लगे हुए हैं. ठीक है, 3 क्या लगे हैं, बल्की ग्रुप लगे हैं. जो देखो बल्की ग्रुप का मतलब फिर क्या हो जाएगा, इस अगर CH3 को ऐसे लिखना पड़ेगा, H H H, यहां भी हो जाएगा H H H, यहां भी सेम हो जाएगा H H और H. ठीक है, दैट मीन जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अप्रोच कहां पे होना है, इस कार्बन पे अप्रोच होना है. ठीक है, तो सर जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन है, इस पे जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होने वाला है वो बहुत वीकली अप्रोच होगा. क्यों वीकली अप्रोच होगा, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेटिंग बाय दिस बल्की ग्रुप. ठीक है, क्या जनरेट हो रहा है आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस का डेवलपमेंट हो रहा है. व्हाई, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप. ये सारे क्या आपके पास बल्की ग्रुप हैं, तो ये क्या जनरेट करने वाला है, स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे. दैट मीन द अप्रोचिंग ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज वेरी लेस. ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत लेस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई द मिथाइल ग्रुप इज सो very faster SN2 reaction, then 1 degree alkyl halide, then 2 degree, then 3rd degree. यानी कि 3rd degree alkyl halide is very poor. It's best for showing nucleophilic substitution by a molecular. ठीक है, तो ये बात होगी आपके the relative reactivity of alkyl halide towards SN2 approach. ठीक है, चलिए एक बात और करते हैं यहाँ पर, which one is the best living group? Which one is the best living group from the halide ion? ठीक है, so you have some halide ion like this, I negative, you have Br negative, you have Cl negative, and you have F negative. So always remember that this I is the best living group. Is the best living group. Is best living group. This is the best, and this is very poor living group. ठीक है, अगर जो भी आपके पास एल्काइल आयोडाइड होगा, ठीक है, वो आपको बहुत फास्टर SN2 रिएक्शन देगा एज कंपेयर टू एल्काइल ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू एल्काइल फ्लोराइड. ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड रिएक्शन तो बहुत ऑर्डिनरी कंडीशन पर होता ही नहीं फुलफिल. क्यों नहीं होता है, बिकॉज ड्यू टू द वेरी कॉम्पैक्ट साइज ऑफ F, एंड सेकंड थिंग इज दैट F is very high electronegative species among the all halogen compounds, all halogen atoms. ठीक है, सो ये आपके पास मिलेगा द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन. ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी किसके पास है, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास अबाउट द SN2 रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन. क्लियर? सो सी आफ्टर SN2 रिएक्शन विल डिस्कस हियर द SN1 रिएक्शन. ठीक है, तो देखें ध्यान से कि SN1 क्या होगा, एंड क्रिएट ओन डिफरेंशिएशन इन बिटवीन SN2 एंड SN1 रिएक्शन. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, इसको रिलीज कर देते हैं यहां से. दैट मीन द यूनिमोलिकुलर की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर मॉलिकुलर रिएक्शन, दैट मीन SN1 रिएक्शन. ठीक है, SN1 रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द SN2 रिएक्शन. ठीक है, SN2 रिएक्शन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अपोजिट का मतलब आप क्या बोलेंगे कि देयर इज SN2 is single step reaction, so SN2 is the double step reaction. Yeah, you can say that 2-step reaction. So it's clear, it's a single step reaction SN2, and SN1 is the double step reaction. So see that I am directly taking one example. So example is that CH3 and CH3. ठीक है, here is Br plus again the OH negative, so it will give you CH3
CH3 CH3OH प्लस Br नेगेटिव, ठीक है. सो रिमेंबर दैट दिस इज द टर्सरी, ठीक है, थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड, द OH नेगेटिव एंड दिस थर्ड डिग्री अल्कोहल. सो सेम विल डू हियर. हम रेट निकालेंगे. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी दिस वन CH3 होल थ्राइस CBr, ठीक है. कंसंट्रेशन इस पर डिपेंड करेगा. एंड रिमेंबर दैट हियर द रेट इज ओनली डिपेंड ऑन दिस वन रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है. केवल एक रिएक्टेंट स्पीसीज पर डिपेंड कर रहा है आपका रेट, ठीक है. दैट मीन रेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस OH नेगेटिव, ठीक है. OH नेगेटिव पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है. दैट मीन द R इज इक्वल टू K CH3 होल थ्राइस CBr, ठीक है. इस पर डिपेंड कर रहा है आपके पास, ठीक है. यानी कि जो आपका अदर रिएक्टेंट होगा वो क्या होंगे, आपके प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे. लाइक कोई एसिड होगा आपके पास, लाइक H2SO4 या यू कैन से द OH नेगेटिव आपके पास है, कोई अल्कोहल आपके पास है. दीज आर नोन द प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है. प्रोटिक क्या होते हैं फिर मिलेगा टॉपिक में आगे, पहले डिस्कस करते हैं. दीज आर द प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है. यानी कि द रेट इज ओनली डिपेंड ऑन दिस थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड या ओनली वन रिएक्टेंट स्पीसीज पर आपका रेट डिपेंड करेगा. सो दिस इज नोन दिस रेट इज वन, दैट मीन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इट इज कॉल्ड, ठीक है. ड्यू टू द रेट इक्वल टू 1, रेट 1 है, दैट मीन यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज देयर, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपके पास द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है. इतनी बातें क्लियर है. चलिए हम बात करते हैं देन इसका मैकेनिज्म का. व्हाट इज द मैकेनिज्म इट फॉलो. मैकेनिज्म you are saying that the same process is going on, that when the Br will release and the OH will come, ठीक है. but here this reaction is follow this two-step reaction, that when the first step is called carbocation formation, is the first step. That means this alkyl halide या bromide is in this manner. So first of all this Br will leave here. That means it forms CH3 plus Br negative. It's a leaving group, ठीक है. So this is called the carbocation formation. After that, in the second step, this carbocation is approaches by the OH negative and form alcohol, ठीक है. So see that this carbocation, ठीक है, generation, and this first step it's called is a very slow step, ठीक है. It's a very slow step. It's a very slow step reaction. That means this reaction या this step is called the rate determining step, ठीक है. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा आपका, ये स्टेप होगा. दैट्स वाई जो आपका रेट आया था वो केवल इस एक अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है. देखिए जब आपने SN2 किया था, SN2 में देखा था आपने, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द कॉल्ड द TS, ट्रांजिशन स्टेट को आपने कहा था रेट डिटरमाइनिंग. वहां पे दो के दो अवेलेबल थे आपके पास, OH नेगेटिव भी अवेलेबल था और अल्काइल ब्रोमाइड भी अवेलेबल था, ठीक है. तो आपने कहा जो रेट होगा वो दोनों पर डिपेंड कर रहा है. बट हियर द रेट इज ओनली डिपेंड ऑन दिस कार्बोकैटायन या दिस ओनली अल्काइल हैलाइड. क्यों? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, इज अ स्लो स्टेप रिएक्शन, एंड दिस स्टेप इज ओनली स्टेप यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग रेट ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है. चलिए नाउ सी दैट आफ्टर दैट हियर the second step reaction, that means the approaching step, ठीक है. Second step, that means the approaching step, that means the CH3 plus CH3 is approaches OH negative and form OH, and here is one CH3 to form the compound called the alcohol, ठीक है. So this is your final product. Clear? This is your final product.
ठीक है। अब देखिए आपने बोला वी आर गोइंग टू फॉलो द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ठीक है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और जब भी हम बात करेंगे अब इसका रिलेटिव स्टेबिलिटी का, ठीक है, आप यहां देखने वाले हैं द रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी, देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी के अंदर क्या मिलेगा आपको, आपके पास क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन रहे हैं, तो वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, द ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, यहां लिख लीजिएगा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर is 3rd degree, 2 degree and a 1 degree. This is the stability order of carbocation, and this same order is follow the relative stability of the alkyl halide towards SN1 reaction, towards SN1 reaction, ठीक है। SN1 रिएक्शन के लिए जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगा अल्काइल हैलाइड का, वो क्या होगा, 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी कि 3rd डिग्री कार्बोकैटायन is give a rapid reaction with SN1, then 2nd degree, then 1 degree, ठीक है। So this is your relative stability. अब बात करते हैं कि होता क्या है इन कार्बोकैटायन के अंदर। कार्बोकैटायन देखो, दिस इज कार्बोकैटायन, ठीक है। हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि अगर 3rd डिग्री कार्बोकैटायन होगा तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा आपके पास, ठीक है। अगर कार्बोकैटायन कुछ और है तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा जो स्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, इन SN1 रिएक्शन यू हैव द 2 प्रोडक्ट, यू हैव 2 प्रोडक्ट, ठीक है। आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं इन SN1 रिएक्शन। देखिए जब भी SN2 की बात की आपने, देयर इज ओनली 1 सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन एज वेल सिंगल प्रोडक्ट यू आर गेनिंग, बट इन SN1 रिएक्शन यू हैव द 2 स्टेप रिएक्शन और ऑलवेज गेन द 2 प्रोडक्ट, वन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड वन इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा फॉलो कर रहा होगा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को, जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करेगा आपका कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को। दिस थिंग इज क्लियर, सी दैट कि कैसे मिलने वाले हैं आपको 2 कंपाउंड, ठीक है, और कहां मिलने वाले हैं, वहां मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा नहीं कार्बोकैटायन क्या बनने वाला है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव द डिफरेंट प्रोडक्ट एज टू एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। यू आर एक्सपेक्टिंग टू द डिफरेंट प्रोडक्ट बट यू आर गेनिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस अबाउट the SN1 reaction. So later on we'll discuss about the rearrangement in SN1 reaction, ठीक है, because we are talking about the कार्बोकैटायन stability. तो कार्बोकैटायन is need या it's always follow the rearrangement, ठीक है। अगर आपके पास 1 डिग्री है कार्बोकैटायन और आप कहीं से रीअरेंज करके 2 डिग्री जनरेट कर रहे हैं या 3 डिग्री जनरेट कर रहे हैं, तो इट्स बेटर फॉर SN1 reaction. Why? Because SN1 reaction is always follow the कार्बोकैटायन